These past days have been quite difficult. और पिछले कुछ दिन बहुत ही मुश्किल से भरे दिन थे We have been experiencing different emotions. और भावना में भी हम अलग-अलग भावनाओं को हम महसूस कर रहे थे हमारे जीवन में। There were a lot of uncertainties that we have been seeing on a daily basis. और प्रतिदिन हमारे सामने एक अनिश्चितता हमारे सामने दिखाई पड़ती थी। But my today's message is joy comes in the morning. लेकिन आज का मेरा संदेश ये है कि भोर को सुबह को सवेरा आनंद आनंद से वो भरता है। I want you to go to Psalms 30 verses 5. भजन संहिता 30वें अध्याय के 5वें आयत पढ़ना चाहूंगा। And in that portion we see his anger is but for a moment, his favor is for a lifetime. वहाँ लिखा है क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। The next part of the verse is what we're going to be focusing on. It says, weeping may tarry for the night, but joy comes with the morning. कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। Joy comes in the morning. सवेरे आनंद पहुंचेगा। And today as we go through different emotions and different struggles in our life, it is very difficult to hold on to this verse. और आज जैसे हम जीवन में अलग-अलग परिस्थिति और अलग-अलग तरह के भावनाओं को हम जब जैसे महसूस करते हैं तो ये आयत का ये जो भाग है इसको समझना हमारे लिए हो सकता है मुश्किल हो जाए। What was the psalmist trying to say when he was writing this portion of scripture? भजनकार जब यहाँ इस बात को यहाँ लिख रहा था तो वो क्या कहना चाहता था? There are some things as we read that chapter, we understand what the psalmist is going through. जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो भजनकार किस बात से होकर गुजरा था उसे हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। You know, in the 5th verse it says his anger lasts but for a moment. 5वें आयत में हमने देखा कि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है। So one of the emotions or one of the things that he was experiencing was that he felt he was experiencing God's anger. तो एक बात हम समझ सकते हैं इसको यूं लग रहा था कि परमेश्वर का क्रोध उस पर है। It is not that he was experiencing God's anger, but he felt God was angry with him. ऐसा नहीं है कि परमेश्वर उस पर क्रोधित था लेकिन बात यह है कि उसे यूं लग रहा था कि परमेश्वर का क्रोध उस पर है। Another thing that we see that he might have gone through is he might have gone through sickness. और दूसरी बात हम यहाँ देख पाते हो सकते हैं उसके जीवन में वो बीमार था। You see in the 2nd verse it says, but God you have healed me. क्योंकि उसके दूसरे आयत में हम पढ़ते हैं कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा तूने मुझे चंगा किया है। Another thing that we see is that he was on the verge of death. और एक और बात हम यहाँ देख पाते हैं कि वो मौत के उस किनारे तक पहुंच गया था। In the 3rd verse there's an image where he writes that verse where he says, God, I was on the verge of death. I was brought up, my soul was brought up from Sheol. और तीसरे आयत में वो एक ऐसा चित्र हमारे सामने रखता है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि वो मरने तक पहुंच गया था। वो कहता है तूने मेरे प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा है। You see there's that image of till that brink of death, he was almost about to die. वहाँ पे ये एक चित्र हमें दिखाई पड़ता है कि वो मरने के उस आखिरी पल तक पहुंच गया था क्योंकि वो कहता है कि कब्र में पड़ने से तूने मुझे बचाया। Another thing that we see about the psalmist is that he had enemies around him. और एक और बात इस भजनकार के बारे में हम ये समझ सकते हैं कि उसके शत्रु थे। You read in the 1st verse, he says, you have not let my enemies rejoice over me. क्योंकि पहले आयत में ही वो कहता है कि क्योंकि मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। And the last thing I want to say about what he was going through was that he was conscious about what the enemies were speaking against him. और एक और बात हम इस अध्याय से देख सकते हैं कि वो जानता था कि उसके शत्रु उसके बारे में क्या बात कर रहे थे। And many times we might also go through these kind of emotions and these kind of thoughts. और हम भी इस प्रकार के सोच विचार से इस प्रकार की परिस्थिति से होकर गुजर सकते हैं। For some of us it might be sickness.
हमें से कुछ लोगों के लिए बीमारी हो For सकती some है of us, it might be financial losses and financial ruin. और हमें से कुछ लोगों के लिए आर्थिक समस्या और आर्थिक रीति से पराजय हो For सकता some है of us, it might be a lost job. हमें से कुछ लोगों के लिए एक नौकरी छूट जाता For है some of us, it is all our neighbors who are watching us and talking about us and pointing fingers at us. और हमें से कुछ लोगों के लिए हमारे पड़ोसी होते हैं जो हमेशा हमारी ओर घूरकर हमारी निंदा करने की कोशिश करते हैं You know the funny thing about when we go through a problem, there's a very funny emotion that we go through. और जब हम समस्या से होकर गुजरते हैं तब हमारे अंदर एक खासकर एक प्रत्येक भावना आती है We are very self-conscious. तब कि वो ये है कि हमारा जो ध्यान है वो सिर्फ हम अपने ऊपर या मेरे ऊपर ही होता है मैं का जो भावना है वो होता है If two people are talking, we immediately think they're talking about me. यदि कोई भी दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं उनको देखकर हमें यूँ लगता है कि वो हमारे बारे में बात If our neighbors is just looking at us, looking outside the window, we think they are looking at us. यदि हमारा पड़ोसी अपने खिड़की से बाहर देखता है हमें यूँ लगता है कि वो हमें देखता होता है When we are driving the car, if somebody just looks at us, we think somebody has told them about us. और यदि हम गाड़ी चलाते हैं और कोई अपने गाड़ी से हमें देखता होता है हमें यूँ लगता है कि वो लोग हमारे बारे में बात कर रहे होते हैं Any problem we go through, we feel like everybody is talking about it. कोई भी चीज यदि कोई भी समस्या से जब हम होकर गुजरते हैं हमें यूँ लगता है कि सब लोग उसी के बारे में चर्चा करते हैं One of the biggest struggles that we need to understand is that it does not matter what others say, it only matters what God says about us. हमें एक बात समझना है हमारे समस्याओं में हमारे संघर्षों में कि चाहे लोग कुछ भी बोले उसका कोई मायना नहीं है हमें सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या बात कर रहा है When we go through sickness, जब हम बीमारी से होकर when we गुजरते go हैं through losses, जब हम पराजय से होकर when we गुजरते have हैं lost a job, जब हम एक नौकरी को खो देते हैं when we don't have friends, we have only enemies. जब हमारा कोई मित्र नहीं होता जब हमारे जीवन में सिर्फ शत्रु होते हैं The one thing that we need to declare is that joy comes in the morning. तो हमें एक बात का ऐलान करना जरूरी है और उस पे विश्वास करना जरूरी है कि सवेरे आनंद पहुंचेगी Everything else is immaterial. बाकी सब चीज का कोई मायना नहीं रखता Joy है comes in the morning. सवेरे आनंद पहुंचता That is है a declaration that we need to speak even when nothing is happening. इस बात का हमें हमारे जीवन के ऊपर ऐलान करना जरूरी है चाहे हम अपने आंखों से कुछ देख ना पाए When you have pain in your body, जब आपके शरीर में दर्द है when you have losses in your houses, जब आपके घर के अंदर आप पराजय या कमी का महसूस when you have करते हैं sickness in your home, जब आपके घर के अंदर बीमारी है when the plans that you plan does not succeed, और जो योजना आप बनाते हो वो योजना आपके योजना के अनुसार जब बातें आगे नहीं बढ़ती we make the declaration that joy comes in the morning. तब हम हमें इस बात का ऐलान करना जरूरी है कि सवेरे आनंद पहुंचेगा But what does it mean to have joy come in the morning? सवेरे आनंद पहुंचने का मतलब क्या होता है You see, when we read that 6th verse, जब हम छठे आयत को पढ़ते हैं it says, "As for me, I said in my prosperity, I shall never be moved." वहाँ लिखा है मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का You want to know the character of a person. यदि आपको किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में यदि आप समझना चाहते हो Give him money. आप उस व्यक्ति को धन दे दो And when you give him a lot of money, जब उसके हाथ में बहुत अधिक धन होता है you will see what his mindset is. आप उसके मन के विचार किस प्रकार के हैं आप समझ सकते हो And that is why when despite Job having a lot of prosperity, और इसीलिए अय्यूब के जीवन में जब उसके जीवन में बहुत अधिक धन जब था God was able to vouch for him. परमेश्वर उस समय भी उसके बारे में परमेश्वर हिम्मत के साथ कह सकता था कि उसके चरित्र को वो जानता है Because unlike David, who in his prosperity said nothing is going to change,
क्योंकि दाऊद के समान जब उसके अपने अच्छे दिनों के समय पे जब उसने कहा कि मैं कभी नहीं टलूंगा, nothing bad is going to happen to me. कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो You सकता। see, look at Job. Whenever, even every day morning, he would pray to the Lord, assuming something is going to happen. हम अय्यूब के जीवन में देख सकते हैं कि हर रोज सुबह उठकर वो परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाता था, क्योंकि वो तैयार होता था, किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार करता था अपने आप को। Our joy is not tied to our prosperity. हमारा आनंद जो है वो हमारे परिस्थिति या हमारे अच्छे दिनों के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। The psalmist is saying, listen, at my time of prosperity, I felt nothing bad is going to happen to me. ये भजनकार कहता है कि मेरे अच्छे दिन के टाइम पे, मेरे चैन के समय में मुझे यूं लगता था कि मैं कभी नहीं टलूंगा, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। And there is a tendency to feel that way when things are all going smoothly. और जब हमारे जीवन में सब कुछ सही चलता है, उस वक्त हमारे मन में इस प्रकार का सोच आ सकता है। Joy is not tied to my circumstance. मेरे परिस्थिति के साथ मेरा आनंद जुड़ा हुआ नहीं है। Joy is tied to my God. आनंद मेरे परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। Listen to what he says. By your favor, O Lord, you made my mountain stand strong. देखिए वो क्या कहता है उसके 7वें आयत में कि हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया है। You hid your face and I was dismayed. जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। My joy is not tied to my circumstance. मेरा आनंद मेरे परिस्थिति के साथ जुड़ा हुआ नहीं My है। joy is tied to God. मेरा आनंद मेरे परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। When I know who my God is, जब मैं जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर कौन है, when I am able to see His face and He is able to see my face, जब मैं उसका चेहरा देख पाता हूँ और जब वो मेरा चेहरा देख पाता I है, will rejoice. तब मैं आनंदित होऊंगा। My circumstance might not change. मेरी परिस्थिति नहीं My बदलेगी, problems might not change. हो सकता है मेरे परेशानियां नहीं बदलेगी, But I am going to rejoice. लेकिन मैं आनंदित होऊंगा, Because my God, I'm able to see Him face to face. क्योंकि मैं अपने परमेश्वर को आमने सामने देख पाता हूँ, Because He has made my mountain firm. क्योंकि उसने मेरे पहाड़ को दृढ़ किया है। You know, when all the things around me, circumstances have a way of shaking the ground beneath our feet. देखिए हमारी जो परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां हमारे पैरों के नीचे जो जमीन है, उस जमीन को हिला सकती है। But the psalmist is saying, it is not my circumstances that are going to make my mountain stand strong. It is my God who is going to make my mountain stand strong. लेकिन यहाँ पे भजनकार कहता है कि मेरे परिस्थिति नहीं, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे पहाड़ को दृढ़ करता है। Another thing that he says over there, he says, what profit is there in my death? In the 9th verse, what profit is there in my death if I go down in the pit? Will the dust praise you? Will it tell of your faithfulness? और 9वें आयत में भजनकार यूं कहता है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? You see, many times when we go through a problem, कई बार जब हम समस्या से होकर गुजरते हैं, we try to twist God's hand. हम परमेश्वर के हाथ को मरोड़ने की कोशिश करते हैं। We say, God, if you do this for me, I will do this for you. हम कहते हैं, प्रभु यदि तू मेरे लिए ऐसे करेगा तो मैं तेरे लिए यूं ऐसे करूंगा। You know, when you've seen children, especially when they are young and when they are studying for an exam. और कई बार हम देखते हैं बच्चों के जीवन में, जब वो छोटे बच्चे जब परीक्षा की तैयारी करते हैं, when they have not studied well for that exam, जब वो अपने पेपर के लिए अच्छे से पढ़ाई उन्होंने नहीं की होती, they will go to God and they will pray. तब वो परमेश्वर से प्रार्थना जब करते हैं, God, if you help me to pass this exam, वो कहते हैं, प्रभु यदि इस एग्जाम को पास करवाएगा तो then I will give you this toy for you, or I will give this thing to you. तो मैं तेरे लिए ऐसे करूंगा या ऐसे करूंगा। I will read the Bible daily, I will pray daily. मैं रोज प्रार्थना करूंगा, रोज बाइबल पढ़ूंगा। As that child, when they grow up, when they become big, they might offer God some other bribe.
और इस प्रकार से जब बच्चे फिर बड़े होते हैं तो वो तो जब वो प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर को कुछ और बातें प्रभु के सामने रखते I know हैं। of people who pray, God, if you give me a government job, I will give you tithes regularly and faithfully. मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने प्रभु से कहा है कि प्रभु यदि तू मुझे सरकारी नौकरी देगा तो मैं लगातार और समय पे तुझे टाइथ दूंगा, दशवांश If you give दूंगा। me a child, I will give him to you. और यदि तू मुझे एक बच्चा देगा तो उस बच्चे को मैं तेरे लिए समर्पण करूंगा। If you give me a wife, then we will attend church regularly. यदि तू मुझे एक पत्नी देगा तो मैं We- लगातार कलीसिया में आऊंगा। We try to bribe God. हम परमेश्वर को कई बार रिश्वत देने की कोशिश करते God हैं। does not want our bribes. परमेश्वर को हमारे रिश्वतों की कोई जरूरत नहीं है। God wants us. प्रभु हमें चाहता है। See, when we read this passage, जब हम इस भाग को जब हम पढ़ते हैं, he's telling God, if I die, what is the use? यहाँ पे वो कहता है कि प्रभु यदि मैं मर जाऊंगा तो तुझे क्या लाभ मिलेगा? Will the dust praise you? क्या मिट्टी तेरा So धन्यवाद कर he's in सकती है? fact trying to tell God, if I don't die, I will praise you. तो वो प्रभु से ये कहना चाहता है कि प्रभु यदि तू मुझे जीवित रखेगा तो मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। God does not want us to praise him when everything is going good. प्रभु हमसे स्तुति और आराधना तभी नहीं चाहता कि जब हमारे जीवन में सब कुछ सही हो तब हम उसकी स्तुति आराधना करें। He wants us to praise him in the midst of all our circumstances. वो चाहता है कि हमारे हर विपरीत परिस्थितियों के बीच में भी हम उसकी स्तुति और आराधना करें। So in the 9th verse he says, God, if I die, it is of no use. If I'm alive, he gives that impression, God, if I'm alive, I will praise you. तो वो यहाँ पे कहता है कि यदि मैं मर जाऊं तो उससे क्या लाभ होगा, मतलब वो परमेश्वर के सामने यूं रखना चाहता है कि यदि मैं जिंदा रहूंगा तो तेरे लिए लाभ होगा। But then he changes his statement. फिर उसके बाद वो अपने बातों को वो बदलता, अपने शब्दों को बदलता He है। says in the 10th verse, he says, hear me, O Lord. और 10वीं आयत में फिर वो कहता है, हे यहोवा मेरी सुन, Be merciful to me, O मुझ Lord. पर अनुग्रह कर। And then he says, O Lord, be my helper. और कहता है, हे यहोवा तू मेरा सहायक हो। There is nobody else that I can turn to. मैं और किसी के पास नहीं जा Joy सकता। comes in the morning when we begin to be dependent completely upon God, whether the situation changes or not. आनंद सवेरे तभी पहुंचती है जब हम, चाहे हमारी परिस्थिति बदले या ना बदले, पूरी तरह से जब हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। Nothing needs to, circumstances don't have to change. हमारी परिस्थितियों को बदलने की जरूरत नहीं है। Our calling on the Lord needs to be consistent. हम जो परमेश्वर के ऊपर परमेश्वर को जो हमारा जो पुकार है वो लगातार होना जरूरी है। We need to, in the beginning of the verse, he says, I will extol you, Lord, for you have drawn me up and you have not let my foes rejoice over me. और इसके शुरुआत में ही हम पढ़ते हैं, इस अध्याय के पहले आयत में ही हम यूं पढ़ते हैं कि हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। We need to begin to rejoice irrespective of whatever is happening. हमारे जीवन में चाहे कुछ भी क्यों ना हो, उस परिस्थिति के बावजूद हमें आनंदित होना सीखना जरूरी है। Joy comes when we do not bribe God, when we do not twist God's hand. आनंद तभी हमारे जीवन में आता है जब हम परमेश्वर को रिश्वत देने की कोशिश नहीं करते या परमेश्वर के हाथ मरोड़ने की कोशिश नहीं करते। The last thing about joy is this. आनंद के बारे में आखिरी बात ये है, When you read that verse, weeping may tarry for the night, but joy comes with the morning. और जब हम इस आयत को पढ़ते हैं कि 5th verse. जब ये 5वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं उसके आखिरी भाग को कि कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। We feel like the psalmist is saying, when I go to sleep, I'll go crying, but when I wake up in the morning, everything will change. हमें ये पढ़कर यूं लगता है कि भजनकार यूं कहता है कि जब मैं रात को जब सोने जाता हूं तब चाहे मुझे रोना पड़े, जब मैं सुबह उठूंगा तो सब कुछ बदल जाएगा। But those of us who have gone through difficult circumstances know nothing changes in the morning. लेकिन हमें से वे लोग जो विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजरे हैं, हम इस बात को बड़े अच्छे से समझते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तब कुछ बदला हुआ नहीं If you have होता। gone to sleep with no money in your pocket,
यदि आप जब रात को सोने जाते हैं तब और आपकी जेब में पैसे नहीं होता, you will wake up in the morning with no money in your pocket. तो सुबह जब उठते हो तभी भी आपकी जेब में पैसे नहीं If you होंगे। had a bad headache when you went to sleep, यदि आप जब रात को दर्द के साथ सोने गए you will हो, wake up also with a lot of pain in the morning. तो कई बार सुबह उठते तभी वही दर्द होता है। Nothing actually changes overnight. एक रात में कुछ बदलता नहीं है But वास्तव में, what changes? लेकिन बदलता क्या है? Only thing that can change is our attitude. और हमारा जो रवैया है सिर्फ वही बदल सकता है। When our attitude changes, जब हमारा रवैया बदलता है, we might go weeping in the night, हो सकता है हम रात को रोते हुए सोने जाएं, but in the morning when we get up, we have this attitude of gratitude that God is going to change things in our lives. लेकिन सुबह जब हम उठते हैं तब हमारे अंदर हमारा रवैया जब बदलता है तो हम ये कहने लगते हैं कि परमेश्वर मेरी परिस्थितियों को बदलेगा। Even if He does not change, I have God and that's all I और need. चाहे मेरी परिस्थिति वो ना भी बदले, लेकिन मुझे मेरे पास परमेश्वर है और वो ही मेरे लिए काफी है। Joy comes into our life. और जब हम ऐसे कहने लगते हैं तब आनंद हमारे अंदर आता है। So one thing that we must remember is that God's promises are not an overnight success. और हमें ये बात अच्छे से समझना जरूरी है कि परमेश्वर के जितने भी प्रतिज्ञाएं हैं, उनके वायदे हैं, वो एक रात में हमें जिस प्रकार हमारी परिस्थिति बदल जाती है वैसे बदलने वाली कोई प्रतिज्ञा नहीं है। Since this is Mother's Day, let's talk about the first mother in this world. और ये आज मदर्स डे मनाया जाता है, तो आइए संसार में सबसे पहली माँ है उसके बारे में हम देखते हैं। You see in Genesis chapter 3 verses 15, God tells Eve, he shall bruise about your offspring. I will put enmity between you and the woman and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head and you shall bruise his heel. और उत्पत्ति पुस्तक उसके 3 अध्याय की 15वें आयत में ऐसे परमेश्वर कहता है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को ढसेगा। And so when Eve heard this thing, she understood that the moment she felt that the moment she has a child, her child will destroy the enemy, destroy the serpent. और जब हव्वा ने ये सुना परमेश्वर सर्प को ये बताते हुए, तो हव्वा को लगा कि जब उसका अपना संतान होगा, जब उसका पहला संतान हुआ, तो उसे यूं लगा कि अब शैतान हार जाएगा। But and so when she had the first child in 4 verses 1, और इसीलिए जब उसका पहला संतान जब पैदा हुआ 4 अध्याय के पहले आयत में, she says, I have gotten a man with the help of the Lord. वो कहती है मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। So that was Cain. लेकिन वो काइन था। And we know what happened with Cain. Cain was a murderer. और हम जानते हैं काइन ने क्या किया। काइन ने अपने भाई को हत्या किया। And so afterwards he has another child in the 25th verse. और उसके बाद उसके 25वें आयत में उसका दूसरा बच्चा होता Not है। दूसरा बच्चा, एक और बच्चा। Second son was we know was Abel, but then in the 25th verse she has another child, and it says, and Adam knew his wife again, and she bore a son and called his name Seth, for she said, God has appointed for me another offspring instead of Abel, for Cain killed him. और जब उसका दूसरा एक और बच्चा जब उसके 25वें आयत में 4 के 25 में पैदा होता है, तो वो जन्म देते वक्त ऐसे कहती है कि उसका नाम यह कहे कि शेत रखा। परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया है। So she had that expectation that what God promised is going to happen immediately. तो उसके अंदर उम्मीद है कि जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया है वो जल्द से जल्द पूरा होगा। But that was not the case. लेकिन वैसा नहीं होना था। We know that promise was referring to Jesus. हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जो वायदा किया था उस 3 अध्याय में, वो यीशु मसीह के बारे में था। And in the same manner there are promises that come into our lives. और इसी प्रकार हमारे जीवन में भी इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं आते हैं। We might think it's an immediate joy. हमें कई बार ऐसे लगता है कि एकदम से आनंद इसके कारण It मिलेगा। is not an immediate joy. ये एकदम से मिलने वाला आनंद नहीं है। Anything that God brings,
जो भी चीज जो परमेश्वर हमारे जीवन में ले आता it है, is not often immediate. कई बार एकदम से मिलने वाला कोई चीज नहीं होता। It is over a long period of time. कई बार वो काफी समय के बाद पूरा होता है, Because God is our Father. क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारा पिता है, And a father is not interested in giving gifts to his children. और एक पिता जो है वो अक्सर अपने बच्चों को तोहफा नहीं देना चाहता। He wants to build character in that child. पिता हमेशा अपने बच्चे के अंदर एक अच्छा चरित्र, एक स्वभाव तैयार करना चाहता है। And so joy that sometime might not be immediate. तो कई बार हमारे जीवन में जो आनंद है वो एकदम से जल्दी से नहीं आता। It might not, our circumstances might not change immediately. कई बार हमारी जो परिस्थितियां है वो एकदम से नहीं बदलती, But we know that God, who is able to move things in our life, He is the one that we wake up to. लेकिन हम जानते हैं कि जो परमेश्वर हमारे जीवन की परिस्थितियों को बदल सकता है, उस पर परमेश्वर उसके लिए या उसके कारण हम सुबह उठते हैं। As we go to sleep tonight, जैसे आज जब हम रात को सोने जाएंगे, we might have so many problems. हो सकता है हमारे जीवन में बहुत अनेक संघर्ष, अनेक प्रॉब्लम्स हो सकती है। And as we go to sleep, we think and we know for sure nothing is going to change. और जब हम सोने जाते हैं तो हमें इस बात को अच्छे से हम जानते हैं कि हाँ, ये परिस्थिति कल सुबह भी ऐसी ही रहेगी। But one thing we hold on to. लेकिन एक सच्चाई है जिसे हमें पकड़ कर We रखना might है cry at night, कि हम हो सकता है रात को रोएंगे, but we will wake up glorifying God लेकिन सुबह हम परमेश्वर को महिमा देते हुए because उठेंगे, we are going to be looking at Him. क्योंकि हमारा नजर परमेश्वर के ऊपर रहेगा। 1 Corinthians 15:55 it says, "Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting?" And then it says in the 57th verse, "But thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ." पहले कुरिन्थियों 15वें अध्याय का 55वें आयत में ऐसे पढ़ते हैं, हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रही है, मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। और उसके 57वें आयत में हम यूं पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। God is going to lead us into victory. परमेश्वर हमें जयवंत करेगा। We might not see it right now, हो सकता है हम तुरंत उसे ना देखें, but as long as we know it and believe it, लेकिन जब तक हम इस बात को, इस सच्चाई को हम जानते हैं और हम इसे ग्रहण करते we हैं, will walk like we are walking in joy. तो हमारा चाल चलन ऐसा होगा कि हम आनंदित हैं। All around we might hear all bad news, हो सकता है हमारे चारों तरफ हमें दुख पहुंचाने वाले खबर हम सुनते रहे, but because God is within us, लेकिन क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर है, because we know nothing can defeat us, और क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी चीज हमें पराजित नहीं कर we सकती, are able to face everything as more than conquerors. हम हर बात को, हर परिस्थिति को जयवंत से बढ़कर हम उसका सामना कर पाएंगे। Whether we live, यदि हम जीवित रहे whether we die, या हम मरे, we are the Lord's, हम परमेश्वर के हैं, and nothing can steal us away from Him. और कोई भी बात हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर Shall सकती। we bow our heads and shall we pray? आए हम अपने सिरों को झुकाए और प्रार्थना करें।